اور جو اندر بیٹھے ہیں، جو باہر ہے، میں ان سب کے لیے کہہ رہا ہوں اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس شربت میں وہ لذت نہیں ہے جو شربت یہاں بٹے گا اس میں لذت ہوگی۔ اللہ کی قسم، یہ شربت تو ہم بانٹ رہے ہیں، لیکن جو میں بتانے جا رہا ہوں، توجہ ادھر، یہ شربت ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں بانٹا تھا۔ اور کتنی عظیم رات ہے۔ آؤ تھوڑا سا میں اس حوالے سے ایک نبی کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو نبی نے بیان فرمایا، بس وہ سن لیں آپ حضرات، اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ اچھا، تو اراکین کی طرف سے یہی لیلۃ القدر ایک بار جب سب سے پہلے امت مسلمہ کے سامنے، مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں کے سامنے جب یہ رات آئی تو یہی رات تھی، مسجد نبوی شریف کی بہاریں تھیں، وہاں پر صحابہ اکرام کا مجمع تھا اور اس مجمع میں نبی کا جلوہ تھا، اور جو آج بیان میں سنانے جا رہا ہوں یہی بیان وہاں ہوا تھا مسجد نبوی شریف میں۔ مسجد نبوی شریف ہے، حوالہ نوٹ کر لیں، شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336 حدیث نمبر 3695، وہاں پر یہ اللہ کے نبی کی شب معراج کا بیان نبی کا وہاں لکھا ہوا ہے۔ میں اس بیان کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بس محبتوں کے ساتھ جی لگا کر، ایسا لگے کہ باہر اتنا شربت میں مزہ نہیں آ رہا ہے جتنا مسجد میں نبی کی باتوں میں مزہ آ رہا ہے۔ ایسا لگا دے کہ وہ دوڑ کے ادھر آئے کہ جلدی سے، ادھر تو بٹ گیا جو بٹنا تھا، ادھر وہ بٹ رہا ہے، اس کی لذت اللہ کی قسم پیتے پیتے رہے گی بس۔ اور جو میں شربت پلا رہا ہوں رب نے قبول کر لیا تو اس کی لذت یہاں بھی رہے گی، گھروں پر بھی رہے گی، اور رب نے قبول کر لیا تو قبر کی منزلوں میں بھی رہے گی انشاءاللہ۔ بیان نبی کا ہے، بس یہی کافی ہے کہ نبی کا بیان ہے، اس میں ہمیں لطف کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ہر بات لاجواب ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا مجمع، عظیم الشان لوگوں کی محفل، جس میں حضرت بلال جیسی شخصیت موجود ہے، عثمان غنی کے جیسی شخصیت موجود ہے، ابو بکر صدیق کے جلوے وہاں موجود ہیں۔ یہ اتنے عظیم سننے والے ہیں اور سنانے والے انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ غور کریں کہ نبی نے تمام صحابہ اکرام کو بیٹھایا، یہی شب قدر ہے اور وہی بیان ہے، بس اتنا ضرور ہے جگہ بدل گئی ہے، محفل میں بیٹھنے والے بدل گئے، سنانے والے بدل گئے، مگر بات وہی ہے جو 1400 سال پہلے نبی نے بتائی تھی ہمیں۔ کیا بات ہے شب قدر کے تعلق سے، نبی بیان فرما رہے، سن لیں آنکھیں بند کر کے، یہ آواز تو میری آ رہی ہے مگر الفاظ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ نبی فرماتے اے میرے صحابہ سنو شب قدر کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے شب قدر؟ کہ جب شب قدر آتی ہے، اب نبی بیان کر رہے، تصور میں آپ سمجھ لیں، اللہ کرے کوئی اتنا کھو جائے تصور میں کہ اسے تصور میں جانے کے بعد آواز نہ صحیح مگر نبی کا جلوہ نظر آنے لگے۔ اب نبی کہتے ہیں سنو جب شب قدر آتی ہے، نبی فرماتے ہیں، منبر پہ نبی جلوہ گر ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پہ جمی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے ان نگاہوں کا صدقہ ہمیں اللہ یہ عطا فرمائے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں بھی ایک بار وہ جلوہ دکھا دے۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے تو دکھائی دے میرے مولا۔ اب نبی فرماتے ہیں سنو جب شب قدر آتی ہے تو اللہ جناب جبریل سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل، بول دو نام جبریل ہی کافی ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے، کہ اے جبریل۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آج آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے 1000 مہینے تک لگاتار سبحان اللہ کہا ہے۔ آج کی قسم خدا کی میں کیا تعریف کروں اس رات کی۔ آج آپ جو ایک نیکی کریں گے وہ ایسے ہے جیسے 1000 مہینے تک آپ نے نیکی کی ہے۔ آج آپ صدقہ بھی کریں، ماں باپ کے قدموں کا بوسہ بھی لیں، آج آپ تھوڑا نماز بھی پڑھیں، تسبیح بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، مصافحہ بھی کریں، بات چیت کریں کسی سے محبت سے، کیونکہ مومن سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج تو ہر نیک اعمال کرو۔ نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو صحابہ اکرام سے، جب شب قدر آتی ہے اللہ فرشتوں میں جناب جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل کہ جاؤ زمین پہ چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جاؤ زمین پہ چلے جاؤ۔ اب جناب جبریل عرض کرتے ہیں میرے مولا میرا کام تو نبیوں کے پاس جانا تھا، نبیوں کو تیرا پیغام پہنچانا تھا، اب مجھے کیوں جانا ہے؟ ان کی امت آج ان کی محبت میں جاگ رہی ہے، تمہیں اس لیے ان کے پاس جانا ہے۔ آپ اپنے مقدر پہ قربان جائیں، اگر آنسو بہا کے بھی سنے تو یہ بیان کم ہے کہ اللہ کی قسم آج کی رات جبریل آ رہے ہیں۔ اب جب جبریل جانے لگتے ہیں، آنے لگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے رکو، اکیلے مت جاؤ۔ کہ مولا پھر کیا کروں؟ کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کے جاؤ، زمین کی طرف بڑی جماعت لے کے جاؤ۔ نبی نے اس بڑی جماعت کے بارے میں بتایا کتنی جماعت ہے وہ فرشتوں کی جو آج آئیں گے۔
आ गए होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमीन में जितने भी कंकर हैं, समंदरों में, रेत में, जमीन में, पहाड़ों में, दरियाओं में जितने भी कंकर हैं, उन कंकरों की तादाद से ज्यादा आज फरिश्ते जिब्रील के साथ दुनिया में तशरीफ लाते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील अभी सबको साथ लेके जाओ, और ऐसे मत जाओ, एक झंडा भी साथ लेके जाओ, हरे रंग का झंडा, सब्ज रंग का झंडा। अल्लाह ये झंडे अल्लाह रब्बुल इज्जत रखवा रहा है। अब समझ रहे, अल्लाह वालों में ही झंडे होंगे, गैरुल्लाह वालों में झंडे नहीं हो सकते। जनाब जिब्रील अर्ज करते मेरे बोला झंडे की क्या जरूरत है कि आज शब कद्र है, अल्लाह का फरमान होता है शब कद्र है, और इसमें मैं इंसानों को, लाखों इंसानों को जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मेहमान बना देता हूं। बस इसीलिए झंडा लगाता हूं, लगवाता हूं। और एक झंडा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर जनाब जिब्रील ने खाना काबा की छत पे लगाया, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया। अगर सवाल करो कि उस दिन झंडा क्यों लगाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जवाब आएगा कि झंडा इसलिए लगा है कि शब कद्र में भी जहन्नम से इंसान निजात पाते हैं, और जिस दिन मेरे नबी आए हैं उस दिन इंसानियत ने जहन्नम से निजात पाई है। तो जिस दिन इंसान जहन्नम से आजाद होता है उस दिन अल्लाह झंडे लगाता है, और जनाब जिब्रील से लगवाता है। अल्लाह फरमाता है झंडा ले जाओ, खाना काबा की छत पे लगा देना। सुभान अल्लाह। अब जनाब जिब्रील जमीन पे आते हैं। नबी ने फरमाया अल्लाह ने जनाब जिब्रील को 100 बाजू अता फरमाए। कितने? 100 बाजू। 98 बाजू साल भर में इस्तेमाल होते रहते हैं, मगर नबी कहते हैं 2 बाजू ऐसे हैं जो पर्सनल शब कद्र के लिए दिए गए हैं। और जनाब जिब्रील जमीन पे आकर उन परों को फैला देते हैं। नबी फरमाते मशरिक से मगरिब तक सारी कायनात उनके परों में समा जाती है, गोया यूं कहिए रहमत में समा जाती है सारी कायनात। और अब जनाब जिब्रील फरिश्तों से कहते हैं, गुफ्तगू अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक जुमला अपने दोस्तों को बताइएगा। अल्लाह के नबी फरमाते जनाब जिब्रील जमीन पे आ गए, फरिश्ते भी आ गए, सारे हाजिर हैं। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ सैयदुल मलाइका, हमें करना क्या है, हमें जाना क्या है, किस लिए हमें जमीन पे लाया गया है। तो जनाब जिब्रील इरशाद फरमाते हैं आज सारी जमीन पे फैल जाओ और मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मतियों को तलाश करो, सारी जमीन पे फैलो, मोहम्मद के गुलामों को तलाश करो। सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पे कुर्बान जाए। तुम यहां बैठे हो, फरिश्ते तलाश कर रहे हैं। पहले घर पे गए होंगे, गलियों में गए होंगे, तलाश करते करते मस्जिद तक पहुंच रहे होंगे। ये मैंने नहीं कहा, नबी ने कहा है। हम तो अपने काम में हैं, मगर फरिश्ते तलाश कर रहे हैं। अब वो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि क्या बस तलाश कर लें और वापस आ जाए, कि ना ना वापस मत आना, उन्हें तलाश करो और उन्हें सलाम करो। सुभान अल्लाह। सलाम करो, ऐ ईमान वालों तुम्हारी किस्मत शब कद्र वो अजीम रात है कि जिसमें आसमान से फरिश्ते तुम्हें सलाम करने के लिए आते हैं। अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। दामने मुस्तफ़ा क्या मिला, कितनी अजीम दौलतें मिल गई हैं। और आप याद रखें सलाम वही होता है जहां मोहब्बत होती है। सलाम वही होता है जहां मोहब्बत होती है। अगर दुश्मनी हो जाए तो सलाम बंद हो जाता है। बाप बेटे में दुश्मनी हो जाए सलाम बंद, यार रिश्तेदारों में दुश्मनी हो जाए सलाम बंद, अजीज व अकारीब में दुश्मनी हो जाए सलाम बंद, यहां तक कि भाई भाई में दुश्मनी हो जाए सलाम बंद, माँ बेटी में दुश्मनी हो जाए सलाम बंद। अब अगर मान लीजिए 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, सदर साहब को पता चल गया, अरे कब तक इस तरह से झगड़ा करके जियोगे, आखिर मरना ही है, जाना ही है, तो ये दुश्मनियां लेके जाओगे। चलो दुश्मनी खत्म करो, एक दूसरे को सलाम करो। क्या हुआ? सलाम हुआ, मोहब्बत हुई और दुआ सलाम चालू हो गया। गौर करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सलाम नबी से चालू है, हमारा सलाम चालू है। अच्छा, अगर दुश्मनी हो तो सलाम बंद हो जाता है, मिजाज ये है। दुश्मनी हो तो सलाम बंद हो जाता है, और दुश्मनी खत्म होती है सलाम चालू हो जाता है। माँ बेटी में दुश्मनी खत्म हुई सलाम चालू हो गया, भाई भाई में दुश्मनी खत्म हुई सलाम चालू हो गया, माँ यानी यहाँ तक रिश्तेदारों में दुश्मनी खत्म हुई सलाम चालू हो गया। मिजाज ये मिला, पता ये चला कि दुश्मनी हो तो सलाम बंद हो जाता है, और मोहब्बत हो तो सलाम चालू हो जाता है। वहाबियों में सलाम बंद है, इसलिए पता चल रहा है नबी से दुश्मनी है, हमारा सलाम चालू है, मोहब्बत चालू हो रही है। हमारी रोजाना नबी से सलाम हो रहा है। हम सजदा रब के लिए करते हैं फजर में, बाद में सलाम मुस्तफ़ा के लिए करते हैं। और यहाँ तक हमारा मिजाज है, कोई ना कोई भाई तो हमारा कहता ही होगा मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, फुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अब फरिश्ते कहते कि जिब्रील क्या बस सलाम करके आ जाए, कि ना ना अभी सलाम करके मत आना, उनसे मुसाफा भी करना। सुभान अल्लाह। है हम अपने भाइयों को सलाम नहीं कर रहे, अपने भाइयों से मुसाफा नहीं कर रहे। अबे किस्मत देखो, हमें सलाम करने के लिए, मुसाफा करने के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेज रहा है। कितना प्यारा अमल है, इतनी अजीम रात में अल्लाह फरिश्तों को हमसे सलाम और मुसाफा करने के लिए भेज रहा है। तो इस अजीम दौलत को जाया मत करो, इसे खत्म मत करो, इसे फैलाओ, इसे बढ़ाओ।
जितना बढ़ाओगे मोहब्बतें बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, बाद में फरिश्ते कहते हैं कि अच्छा सलाम कर लिया, मुसाफा कर लिया, फिर वापस आ जाए। तवज्जो इधर, सलाम भी कर लिया, मुसाफा भी कर लिया, अब वापस आ जाए। जनाब जिब्रील कहते हैं ना ना, जब तक वो बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहे, इबादत करते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, या अल्लाह वालों का जिक्र करते रहे, उन्हीं के साथ रहना है। और जोर से बोलो, बात बहुत बड़ी है। जब तक वो जिक्र करते रहे तुम्हें उनके साथ रहना है। और लास्ट का जुमला सुने कि अब जनाब जिब्रील कहते हैं अगर वो लास्ट में दुआ करें तो उनकी दुआओं पे आमीन भी कहना है, आमीन भी कहना है तुम्हें उनकी दुआओं पे। सुभान अल्लाह। आज देखो हमारे अंदर कितनी कमी है, बड़ी बड़ी अच्छी दुआएं मस्जिद में की जाती हैं मगर सब लोग आमीन नहीं कहते हैं, है ना, आवाज़ें बहुत कम होती हैं। अल्लाह की कसम ये वो अजीम तोहफा है दुआ पे आमीन कहना। अरे 40 लोग मिलकर जिस दुआ पे आमीन कहें यकीनन अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। लेकिन इतनी सुस्ती हो गई इस अमल में, इस अमल को बढ़ाओ। कोई भी छोटा बड़ा दुआ कर रहा है आमीन कहो, क्योंकि ये वो अमल है। भाई यार अंदाजा लगाओ, मैं गुनाहगार, आप गुनाहगार, हम गुनाहगार, सियाकार, कैसे हालात है हमारे, सही से पता भी नहीं है पाकी हमें है कि नहीं है, मगर फिर भी हमारी दुआओं पे फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। और एक हम है कि हम ही आमीन नहीं कह रहे हैं, जबकि फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। तवज्जो इधर, उनकी दुआओं पे आमीन कहना। जनाब जिब्रील कहते हैं और जब वो उठ जाएं, सुभान अल्लाह, जब वो उठ जाएं घर की तरफ जाएं तो तुम भी पलट के वापस आ जाना। सुभान अल्लाह। अब ये सिलसिला सुबह तक चलता रहता है, तुलुए फजर तक। जैसे इस फजर तुलु होती है सारे फरिश्ते वहीं जमा हो जाते हैं जहां से गए थे। सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद जनाब जिब्रील कहते हैं अब वापस जाना है। एक फरिश्ता, तवज्जो इधर, उनमें से कहता है, इंपोर्टेंट गुफ्तगू अब शुरू हो रही है मेरे भाई। एक फरिश्ता उनमें से कहता है कि जिब्रील मैं जहाँ गया था उस बंदे ने कुरान भी पढ़ा, नमाज भी पढ़ी, इबादत भी की, तिलावत भी की, सब कुछ किया, दुआएं भी की, जहन्नम से पनाह मांगी, जन्नत मांगी, मगर ये तो बताएं अल्लाह ने आज उम्मत मुस्तफ़ा के बारे में क्या फैसला किया? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हम आए और चल पड़े, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनके लिए क्या हुक्म हुआ? तो अब जनाब जिब्रील कहते हैं हाँ सवाल बहुत अच्छा है, सुनो। और ये बात नबी ने सहाबा इकराम को सुनाई है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं कि नबी ने सुनाई। नबी की बात पे यकीन है कि नहीं है? जनाब जिब्रील कहते हैं जब फरिश्ते ने सवाल किया कि उम्मत मोहम्मदिया का क्या बना, अल्लाह ने क्या इनाम दिया, कुछ मिला कि नहीं मिला, तब जनाब जिब्रील कहते हैं अल्लाह ने 4 लोगों के अलावा सब पर आज नजर रहमत फरमाई और सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया। 4 लोगों के अलावा। इंपोर्टेंट यही है कि ये 4 कौन है, समझ रहे? अरे भाई असल चीज ये है आज शबे कद्र का हर इनाम उन्हें मिलेगा जो इन 4 किस्म के लोगों में से नहीं होगा। तो हमें जांचना है, परखना है, देखना है। हम तो उस 4 लोगों की लिस्ट में नहीं है, अगर है तो आज निकाल लो, उस लिस्ट से निकालोगे तभी रमजान का फायदा होगा, तभी शबे कद्र का फायदा होगा। वरना जनाबे जिब्रील ने कह दिया इन 4 लोगों का आज भी कुछ नहीं हुआ। वो 4 कौन है? तवज्जो इधर, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह तो बताएं, अपने नबी का नाम लो, कह दो या रसूल अल्लाह। वो 4 लोग कौन है जो आज भी नहीं बख्शे जाएंगे? ये मत समझना कि उनके सर पे सींग होंगे वो नहीं बख्शे जाएंगे, हम में से ही हैं। नंबर 1, जल्दी से झांको अपने अपने गिरेबान में सब। नंबर 1, शराब पीने वाला आज नहीं बख्शा जाएगा, उसके लिए 1000 शबे कदर आ जाए कुछ नहीं होने वाला उसका। मुझे यकीन है कि यहां ऐसा कोई नहीं है, और अगर मेरे इल्म से, मेरा इल्म गलत हो, कोई अगर इस तरह का हो भी तो आज तौबा कर ले, शराबियों की लिस्ट से अपना नाम कटवा ले। अगर कटवा लिया तो आज की शबे कद्र में ही उसका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। नंबर 1, शराबी आज नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 2, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। यह मत समझना कि जो माँ बाप पे लठ बजाता हो वही नाफरमान है, जो लाते घूसे मारता हो वही नाफरमान है, जो चौराहों पे माँ बाप को गालियां देता हो वही नाफरमान है। नहीं नहीं, उलमाए इकराम फरमाते नाफरमान वो है जो माँ कहे बेटा मेरा ये थोड़ा सा काम कर दे, गिलास में पानी दे दे, मुझे ये दे दे, और वो कहे कि तुम ही उठा लो, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है, मैं जरा जल्दी में हूं, बस तुम ही कर लो। ये ही नाफरमान है, समझ लो। माँ ने कहा बेटा 5 मिनट मेरे पास बैठ जा, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, तू अपना काम कर, यही नाफरमान है। आज ये नहीं बख्शा जाएगा। और अगर ऐसा बंदा है तो जल्दी से लिस्ट से वालिदैन की नाफरमान की नाम कटवा ले। पहले माँ से तौबा करे, बाप से तौबा करे, माफी मांगे, फिर अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह माफ फरमा देगा। नंबर 3, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। क्या मतलब? मैंने उनसे बोलचाल खत्म कर दी, आना जाना बंद है,
फला जगह ऐसे ऐसे मुझे कह दिया था, मेरी इज्जत में ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बस उसी दिन से मैंने बातचीत खत्म कर दी। खाना पीना बंद, आना जाना बंद, दुआ सलाम बंद, उठना बैठना बंद। आज ये बंदा भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए फौरन रिश्तेदारों से नाराजगियां खत्म करो और उन नाफरमानों की लिस्ट में से नाम कटवाओ, इंशाअल्लाह जन्नती हो जाओगे। नंबर 4 आपस में अदावत रखने वाले। अब अदावत रखने वाले तो मुझे ऐसा लगता है भैया अल्लाह माफ़ करे, कोई सीना पाक होगा इस चीज़ से, वरना सबको इस बात का दुख है इसने इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया, ये नई गाड़ी कहाँ से ले आया, लॉकडाउन में भी मकान बना लिया, इसमें इतना पैसा कहाँ से आया है, ये नई गाड़ी कहाँ से ले आया। अब सामने से तो है अच्छा है, मगर अंदर से ये कहाँ से ले आया। यही है जो आज भी कुछ नहीं होगा इसका, समझ रहे। और ये आपस तक थी तो ठीक था, अल्लाह की कसम मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जो इमाम साहब को कह रहे हैं इमाम साहब नई गाड़ी कहाँ से ले आए। हाँ ये हजम नहीं हो रही। इमाम ने अगर प्लाट खरीद लिया तो मरने तैयार है जहर खा के, है कि नहीं। ये आज भी नहीं बख्शा जाएगा ऐसा बंदा। यानी इमाम नई गाड़ी ना खरीद रहे, और अगर प्लाट खरीद लिया फिर तो इमाम शहर से बाहर है। मैं अल्लाह के बंदों मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ने मना थोड़ी किया कि तुम कमाओ मत, इस्लाम के दायरे में रह के खूब कमाओ, मगर दायरे में इस्लाम के रह के। हमारे नबी ने तिजारत नहीं की है, मुल्क शाम का सफर किया हमारे नबी ने और हुक्म दिया तिजारत करो। नबी ने फरमाया खूब कमाओ, मजबूर बन के मत जियो, पैसा तुम्हारे पास होगा तो ताकत तुम्हारे पास होगी। इस्लाम को हर चीज की जरूरत है मेरे अजीज। तो आपस में अदावत रखने वाला ये भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर ऐसा कोई बंदा है तौबा करे सच्चे दिल से और अल्लाह से माफी मांगे, उस लिस्ट से अपना नाम कटा ले। इन चारों लिस्टों से अगर नाम निकल गया तो कसम खुदा की बंदा आज ही जन्नती हो जाएगा, आज की रात में ही। लेकिन हम तो कई कई जगह फंसे पड़े, कहीं तो माँ बाप की वजह से फंसे पड़े, कहीं रिश्तेदारों की वजह से फंसे पड़े, कहीं आपस की वजह से, सब में ये बीमारी बहुत हो गई है। तो भैया याद रखिएगा, अगर ये चीज़ है, जिब्रील ने पहले ही कह दिया इन 4 के अलावा अल्लाह ने सबको बख्श दिया। अल्लाह तौफीक दे कि हम सबसे पहले नमाज बाद में पढ़ें, अगर ये बीमारी है तो पहले इस बीमारी को दूर करें। कोई रिश्तेदार नाराज़ है फ़ौरन आज जाके फ़ोन लगाएं उसे, उसकी रिश्तेदारी नाराज़गी को दूर करें। आप दिल में अगर अदावत है, कदूरत है तो इसे पाक करें और सच्चे दिल से तौबा करें। माँ बाप की नाफरमानी की है, कभी उल्टा सीधा बोल दिया, गरम बोल गए, तेज बोल गए, ज़्यादा लहजा सख्त हो गया, आज जाइए कदम चूम लीजिए माँ का, बाप का। अल्लाह की कसम ये ऐसा होगा जैसे आपने 1000 महीनों तक लगातार कदम चूमा है माँ बाप का। इन्हीं जुमलों के साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी होगी, फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह से दुआ है सही माने में नेक अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलिना बिल बाग। अस्सलामु अलैकुम। और सभी हज़रात से गुजारिश है, बहुत मेहनत से लोगों ने तबर्रुक का इंतज़ाम किया, आप लोगों के लिए लेके जाएं। वैसे मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऐलान की ज़रूरत है नहीं। तबर्रुक के लिए तो यार लोग अच्छी अच्छी महफिलें छोड़ दें और बैठे बैठे दे लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये सही बात है। वरना कहीं धक्का मुक्की में इधर उधर होगा, गिरेगा, ये अच्छा ना रहेगा। आराम से इत्मीनान से ले लें। अरे अगर इत्मीनान से काम करेंगे तो तबर्रुक तो खुद